رہا ہے ایک غیر مسلم ڈاکٹر عیسائی سرجن کہاں سے امریکہ سے کب آج لیکن but more than 1400 years ago take the primitive book my prophet told us آج سے 1400 سال پہلے کی پرانی کتابیں اٹھاؤ مسلم شریف جلد ثانی حدیث نمبر 175 آقا ارشاد فرماتے ہیں امر بلاغ الاصابع والصحفہ وقال انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ اے دنیا والو جب تم کھانا کھایا کرو تو پلیٹ کو اچھی طرح صاف کیا کرو انگلیوں کو چاٹا کرو تو دنیا چاہے چاند پہ پہنچ جائے مگر ایک نہ ایک دن اسے گنبد خضرا کے چھاؤں میں آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت بہت بڑھیا بہت اچھے معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے دھیرے اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے اب بتاؤ آپ لوگوں میں سے کتنے ہیں جو خطیبوں کے سردار کے سامنے خطیبی چینو جاپان کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ کل سے جب کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے انگلیوں کو چاٹیں گے پلیٹ کو صاف کریں گے کھانے کے بعد الحمدللہ کہیں گے سبحان اللہ جس نے فتنے کے دور میں ایک سنت کو زندہ کیا اللہ رب العزت انہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے اب آئیے ایک چیز اور ایک حدیث پاک اور سن لیجئے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہے کسی کا لو ہے رات کو نیند نہیں آتی ہے بڑی بے چینی رہتی ہے اے سی میں بھی ایسی تیسی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے بیٹا کہ سنتوں سے ہٹو گے تو پھنسو گے ہے نا بلڈ پریشر ہائی ہے شوگر ہے اسٹون ہے تو کسی کو یورک ایسڈ ہے سوتے ہیں تو اے سی میں بھی ایسی تیسی ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے آؤ اس میں تحقیق کریں حدیث پاک کی روشنی میں وہ ڈاکٹر امریکہ سے کیا بولتا ہے سیدوں کا غلام آپ کو سلی گوڑی سے بتاتا ہے وہ ڈاکٹر امریکہ سے کہتے ہیں we sleep wrong ہم سوتے غلط ہیں میں نے کہا کیسے تو ڈاکٹر نے کہا ایسے if I sleep on the topsy turvy head it is my experience all the body lands on heart وہ کہتے ہیں اگر ہم الٹے ہاتھ کی طرف سر رکھ کے سوتے ہیں یعنی اس طرح تو ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ دل اور معدہ دونوں اس سائڈ ہے تو دونوں پہ جسم کا بوجھ ہوتا ہے اس بوجھ کی وجہ سے یا تو آپ کا دل تیزی سے دھڑکے گا یا آہستہ یا گھبراہٹ محسوس ہوگی لوگ سوتے سے اڑ جائیں گے ان کی نیند خراب ہو جائے گی تو ڈاکٹر صاحب امریکہ سے بولتے ہیں if you have to sleep you want to sleep the heart is free تم سونا چاہتے ہو دل کو آزاد رکھے آپ بولو جی تو ڈاکٹر بولتا it means sleep on the side of right واہ 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 سبحان اللہ so that heart could be patient with freedom and blood pressure will not be high وہ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف سر رکھ کے سو تاکہ تمہارا دل آزادی کے ساتھ دھڑکے نہ بلڈ پریشر ہائی ہوگا نہ لو سکون کی نیند آئے گی آزما کر دیکھ لو اے بزم رسول میں آنے والوں یہ کون بول رہا ہے ایک غیر مسلم ڈاکٹر عیسائی سرجن کہاں سے امریکہ سے کب آج but more than 1400 years ago take the primitive book my prophet told us بخاری شریف عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم استجي على شقك الايمن اے دنیا والو جب تم سونے کے لیے بستر پہ آؤ تو پہلے نماز کی طرح وضو کرو سو تو دنیا چاہے چاند پہ پہنچ جائے سلی گوڑی والو مگر ایک نہ ایک دن اسے گنبد خضرا کے چھاؤں میں آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا پھیلائے ہوئے گوشے
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। कल से कितने लोग हैं इंशाअल्लाह जब सोएंगे मोबाइल फेंक फाक कर वुजू बनाएंगे और इस करवट पर सर रख के सोएंगे सबसे वाह वाह। अरे उठा लो हुजूर सैयद साहब कबीला को गवाह बना लो इंशाअल्लाह यहाँ भी चमकते रहोगे वहाँ भी चमकते रहोगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो नमाज पे नहीं बोलते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सुन्नी उलमा नमाज ही पे नहीं जाने नमाज पे बोलते हैं, जाने कायनात पे बोलते बहुत हैं, बढ़िया। रूहे कायनात पे बोलते हैं। वो कैसे मैं कहूँगा ऐसे। एक बार तो मेरा सफर था मुगल सराय से बनारस का हजरत अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब के साथ। तो जिस डब्बे में मैं था गरीब रथ में उसमें देखा एक कंपार्टमेंट में बड़ी भीड़ लगी है। एक 1.5 हाथ का आदमी था जो लोगों को टिप्स दे रहा था कि चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी और चेहरा कैसे चमकेगा। तो मौलाना नुमानी साहब ने कहा देखो रूहुल अमीन वहाँ भीड़ क्यों लगी है। तो मैं गया तो देखा वो लोगों को बता रहा है कि चेहरे में रोशनी और गिलो और चेहरा कैसे चमकेगा वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे पूछा हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन। वाह वाह। मैंने कहा वाह वाह अरे तुम आइडियल पर्सन कैसे बने हुए तुम्हें इज्जत क्यों मिल रही। तो उसने मुझसे कहा मौलाना। मैंने कहा फरमाना मौलाना। मैंने कहा बोलना। तो उसने कहा आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डू नॉट टेक। उसने कहा मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते हैं। मैंने कहा इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। तो उसने कहा आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डू नॉट टेक। उसके लिए मैं रोजाना इसके लिए रोजाना मैं एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा तुम क्या करते हो बाबा। तो उसने कहा मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूँ। उल्टा बोले तो सर नीचे टांग ऊपर। मैंने कहा क्यों। कहा इसलिए कि ये जो मेरा दिल है एक पंपिंग सिस्टम है। दिल क्या है एक पंपिंग सिस्टम है और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो पानी बड़ी आसानी के साथ जाता है। लेकिन जब ऊपर की मंजिलों पे भेजते हैं 2 तल्ले 3 तल्ले 4 तल्ले पे तो ऊंचाई होने की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यही वजह 2 तल्ले 3 तल्ले पे पानी भेजना हो तो टिल्लू पंप और मशीन के जरिए भेजते हैं। लेकिन जब डाउन में पानी भेजना हो कुछ करने की जरूरत नहीं है, नल में फिट कर दो पानी पहुंच जाएगा। तो उसने मुझसे कहा मौलवी रूहुल अमीन खून का मंबा चश्मा मस्दर मखरज ये दिल है। यही से खून सप्लाइंग ऑल बॉडी। यही से खून कान में, यही से खून नाक में, यही से खून आंख में, यही से खून पेशानी में, यही से खून दिमाग में। तो इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरी पेशानी में, मेरे दिल से मेरे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा खून दाखिल हो जाए। तो अल्लामा नुमानी साहब ने फरमाया रूहुल अमीन तुमने साइंस पढ़ी बाबा को कुछ बताओ। मैंने कहा बाबा आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या जरूरत थी। उसने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका। अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मरतबा करनी नसीब होती। उसने कहा कैसे। मैंने कहा ऐसे। In general condition, the heart of the people are down and head up, in sitting and laying and sleeping. In 3 conditions, blood goes up, but not in much quantity. मैंने कहा बाबा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है दिल नीचे। कुछ लोग खड़े हैं उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। कुछ लोग 2-2 3-3 तकिया लेके सोते हैं उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती। लिहाजा स्किन जल्द मुर्दा सी हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर है। वाह 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 वाह, में गए अल्लाह
छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहां से? अमेरिका से। कब? आज, but more than 1400 years ago, take a primitive book, my prophet told us, as-salatu nurul mu'min, नमाज मोमिनों का नूर है। वो قال العلماء في تفسير هذا الحديث أن الصلاة نور في القلب ونور في الوجه، نماز دل کو بھی روشن کر دیتی ہے اور چہرے کو بھی منور کر دیتی ہے۔ عشق نبی میں ڈوب کے پڑھو تو جب زمین پر رہو گے چمکتے رہو گے، زمین میں رہو گے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ دیکھیں آپ، میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں۔ بہت بڑھیا۔ ہندوستان کے بہت بڑے مناظر ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، نام ہے علامہ ارشد القادری۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ضرور ہوں گے، بے شک۔ بالواسطہ بلا واسطہ ضرور وہاں تک پہنچے ہوں گے۔ تو علامہ اسلامک اسکالر اینڈ پریزنٹ لیڈر ورلڈ اسلامک مشن قمر الزمان اعظمی اسٹیڈ، علامہ ارشد القادری بورن ان انگلینڈ۔ جب وہ انگلینڈ میں گئے تھے مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے، تو ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے۔ تو جب آپ پہنچے انگلینڈ اور انگلینڈ میں آپ وہاں پہنچ کر ایک لیبوریٹری میں گئے اور وہاں پر دین کی باتیں بتا رہے تھے، اسی درمیان کانوں میں مغرب کی آواز آئی، اذان۔ تو چونکہ مغرب میں ٹائم بہت کم ہے، جاڑے میں کم اور مغرب، اور جب گرمی ہو تو 15-20 منٹ زیادہ، تو دیکھا رہی نماز کہاں پڑھے؟ تو دیکھا ایک پارک ہے، بولا چلو سب لوگ وہیں پڑھتے ہیں۔ ایک قاری صاحب آگے، 2-4-5 لوگ پیچھے، نماز شروع ہوئی۔ تو جب نماز ہونے لگی نا تو آپ دیکھیے گا، جہاں نماز تمام انبیاء کی سنت ہے، جہاں نماز مومنوں کی معراج ہے، جہاں نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے، جہاں نماز جو ہے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہیں صحت مند زندگی کا راز بھی نماز ہی میں چھپا ہوا ہے۔ اب علامہ سب لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھا، اللہ اکبر۔ تو جیسے نماز شروع ہوئی نا تو جو ڈاکٹروں کا باپ ہے، ڈاکٹر ایف ایس اسٹورنٹ، وہ آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا رہی لوگ کون ہے، کہا مسلمان ہے، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب کھولی اور ان کا قیام، سجود، سلام پھیرنا دیکھا اور کتاب کو دیکھا، کہا ارے یہی تو میں 10 سال آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، جو باتیں 10 سال واہ، حضور سید الخطبہ جو 10 سال میں آکسفورڈ میں نہیں سمجھ سکا، 10 منٹ میں سمجھ، واہ واہ واہ، 10 منٹ میں۔ کہا اچھا اگر یہ کل بھی نماز پڑھے، ان کے پیچھے کوئی ایسی مشین رکھنا جسے میں دیکھ 1982 میں جو بھی اس وقت مشین ہوگی وہ رکھ دی گئی۔ اللہ کا کرم ہوا، دوسرے دن میں نماز شروع ہوئی اور وہ خود جا کر کے اسکرین پہ بیٹھا، سب کچھ دیکھا۔ جیسے نماز ختم ہوئی 18 لوگ ایمان میں آئے۔ واہ 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 واہ، اگر یہ میڈیا والا نہیں بتائے گا، ابھی ایک پٹاخہ مل جائے نذیر بھائی کے گھر میں تو سب سے پہلے زی نیوز والا پہنچ جائے گا۔ ہم ہیں کہ ہمارے ڈر کے کمرے میں بند ہیں، اخبار لکھ رہا ہے، دہشت پسند ہے، روٹی چرا کے ہم چور ہو گئے، وہ ملک کھا گئے قانون لکھتے، وہ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے۔ تو جب وہ ایمان لایا تو اس سے انٹرویو لیا گیا کہ آپ ایمان کیسے لائے؟ کیا بات؟ تو اس نے جو انٹرویو لیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا سنو، جب مسلمان کھلی انگلیوں کے ساتھ کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے کو ایسے، یہاں پہ علماء کرام ہیں، یہ انگلیاں نہ ایسی ہو اور نہ اس طرح، نہ سٹی ہو، نہ ایسے، نہ کچھ قبلے کی طرف، کانوں کی لو تک بیلنس کے ساتھ اٹھائے۔ کہا جب مسلمان اس طرح ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی انگلیوں، کہنیوں، کندھوں کے اندر جتنے جراثیم بیکٹیریاز ہوتے ہیں اپنے فضل سے سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اور جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تلاوت تو اصول مخارج 3 ہیں، حلق، لسان، شفتان۔ آج قرآن شریف پڑھنے کی باری آئے تو مدرسے والوں کو چھوڑ دیجئے تو 99% +9% لوگ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں
जैसे दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं, अली बेटे से जिम है के दाल जाल तो जो आइन गए। वो कहता है कि जब मुसलमान कुरान को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनके हलक, लिसान, शफतान, दिलो दिमाग को रोशन कर देता है। वाह वाह। और जब खड़े हुए तो कयाम की वजह से टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है, और जब रुकू में गए तो जिस्म के तमाम मसल्स में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो वो रगे जो दिमाग से आकर बॉडी को जा रही है, जिसके वजह से हमारे जिस्म के आज़ा काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। माइक टाइसन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। गैरी मिलर ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। और आगे बढ़े, कीथ मोर ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मॉरिस पिटाई ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है, ये आज कह रहे हैं, पैगंबर कायनात ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया फ़इन्न फ़ी सलाती शिफा, बेशक नमाज में शिफा है। भाई बहरे अलग में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरका जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। अब बताओ कल से कितने लोग हो कि इंशाअल्लाह नमाज इंशाअल्लाह। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठा के बताएं। सैयद साहब तशरीफ फरमाए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ये नजरें करम कर देंगे, आप चमकते नजर आएंगे। हाथ उठाइए, माशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठाए, उलमा भी हाथ उठाए। सैयद साहब फरमा रहे हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। सैयद साहब का मिशन ही जी हजरत, ला के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मिशन ही है। माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है। अब देखें, आज तो एथिस्टों का बड़ा जोर है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आता जाता कुछ नहीं, नाम लिखता है जावेद अख्तर, और इनकार। अरे वजूदे बारी ताला जो है फितरत की एक ऐसी आवाज है जिससे इनकार मुमकिन ही नहीं। देखें आप, अपने वक्त के बहुत ही बड़े मुबल्लिग जिनका नाम है अल्लामा अब्दुल अली सिद्दीकी, जो खलीफा आला हजरत मुबल्लिग आज़म आलम है, जिनको पढ़ने के लिए आला हजरत ने उस दौर में 11,000 रुपए दिए और बाहर पढ़ने के लिए गए थे। अब इन्होंने क्या क्या किया है, अब देखें आप, सुने। हजरत पड़ोसी मुल्क में गए थे उस वक्त, तो आपकी तबीयत खराब थी, तो एक क्लिनिक मिलेगा अस्पताल में आपको दिखाने के लिए। नमाज पे बात आई तो सुन लीजिए, आज लोग क्या क्या एतराज करते हैं। जी शान भाई। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब जो है गए, तो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर, तो लोगों ने कहा हजरत दिस मैन इज एथिस्ट, ये आदमी जो है एथिस्ट है, ये खुदा को नहीं मानता। तो हजरत ने उधर देखा तो उसने कहा नहीं हजरत, मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, बस कुछ बातें ऐसी जो मेरे समझ में नहीं आती। तो हजरत ने क्या समझ में नहीं आती है, तो उसने कहा नमाज ही को ले लीजिए। नमाज को, अगर अल्लाह को नमाजी चाहिए तो एक ही वक्त में मांग ले। जुमला देखें, अल्लाह को नमाजी चाहिए तो एक ही वक्त में मांग ले। अब ये क्या है कि जोहर में 2 पढ़ो, सिर्फ फर्ज बोल रहा है, जोहर में 2 पढ़ो, ये सर, फजर में 2 पढ़ो, और जोहर में 4 पढ़ो, फिर असर में 4 पढ़ो, मगरिब में 3, फिर ईशा में 4, वगैरह वगैरह। इसकी क्या जरूरत है? अल्लाह को 17 रकात नमाज चाहिए तो कहते मेरे बंदो एक ही बार में पढ़ लो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, बात खत्म। तो लोगों ने हजरत की तरफ देखा कि देखें क्या जवाब देते हैं। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत ने फरमाया अरे मेरी तबीयत खराब है, पहले मुझे तो देखो। उसने कहा जी हजरत जी। तो उसने देखा, थर्मोमीटर लगाया, ब्लड प्रेशर चेक किया, टेम्परेचर नोट किया, कहा मैं समझ गया हजरत आपको क्या हुआ है, मैं नुस्खा तजवीज़ किए देता हूँ और आप फौरन ठीक हो जाएंगे। आप देखिए आप क्या नुस्खा तजवीज़ करता है वो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तजवीज़ किए देता हूँ, आप इस पे अमल करें, आप फौरन ठीक हो जाएंगे। आपने कहा हाँ चलो दवाई लिखो, तो वो दवाई लिख रहा है। अब
सुने, वो दवाई लिख रहा, फजर में ये, दोपहर में ये, और लिखने के बाद में हजरत से कहता, हजरत एक काम कीजिएगा। हजरत ने कहा दवाई लिख दी? कहा हाँ। कहा बताओ क्या करना है? कहा हजरत ये 2 गोली आपको सुबह में खानी है। वाह 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 वाह, 2 गोली ये सुबह में खाइएगा। हजरत ने कहा अच्छा। और कहा ये 2 गोली दोपहर में, वाह, और ये 2 गोली शाम को, और ये 2 गोली रात में, और ये 2 गोली सोने से पहले। वाह। तो हजरत ने फरमाया एक काम करूं, क्या मैं तमाम गोलियों को सुबह ही में खा लूं, चलेगा? हाँ, वाह 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 वाह, लाजवाब। ये तमाम गोलियों को मैं सुबह में खा लूं डॉक्टर, चलेगा? उसने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये 2 गोली ये सुबह का डोज है, ये 2 गोली दोपहर में, उसको दोपहर में खाइए, ये 2 गोली शाम, तो शामी को खाइए। इस तरह दवाई का एक कॉम्बिनेशन होता है जी, का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके दवा असर करेगी और आपकी तबीयत ठीक होगी। तो हजरत ने कहा एक काम करो, ये तमाम गोलियां सुबह नहीं, अगर मैं दोपहर में खा लूं चलेगा? बोला बिल्कुल नहीं चलेगा। कहा रात में खा लूं चलेगा? कहा बिल्कुल नहीं चलेगा। तब हजरत ने फरमाया ए डॉक्टर, जिस्म की हसासियत को देखकर मेडिकल साइंस ने इलाज करने के लिए जो इख्तियार तुमको दिया है, क्या रूह के इलाज के लिए भी उतना इख्तियार परवरदिगार? वाह 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 वाह, इलाज के सुभान लिए अल्लाह। परवरदिगार को नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तमाम गोलियों को एक वक्त में नहीं खा सकता, अगर खाऊंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। जो ठहर कर वक्त पर खाने से बात बनेगी। इसी तरीके से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, बेशक नमाज फर्ज है मगर वक्त के साथ फर्ज है। ये वक्त क्यों मुकर्रर किया? इसलिए मुकर्रर किया, अकीमिस सलाह लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, यानी फजर के वक्त फजर की नमाज फजर के वक्त, ज़ुहर की नमाज ज़ुहर के वक्त, असर की नमाज असर के वक्त, मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त, इशा की नमाज इशा के वक्त है। तो जब ये याद इलाही का डोज है जो रूह इंसान को दिया जा रहा है, 4 रकात के जरिए फजर में, 12 रकात के जरिए ज़ुहर में, और 8 रकात के जरिए असर में, 17 और 7 रकात के जरिए मगरिब में, 17 रकात के जरिए इशा में। और कमाल देखें, दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, वो दावा करते हैं कि हम भी जो है इबादत करते हैं, लेकिन तुम लोग एक तरफ, इस्लाम में जो नमाज है 48 रकात है, तो 24 रकात दिन में, 24 रकात रात। वाह वाह वाह, कॉम्बिनेशन देखो। जब तुम्हारे दिल में हर वक्त जिक्र खुदा होगा तो उसका असर क्या होगा? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, दिलों को इत्मीनान मिलता है तो खुदा की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इसी के साथ एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। हुजूर सैयदुल खुतबा तशरीफ रखते हैं। आजकल लोग पर्दे का बोलते हैं, ये क्या है? हिजाब। ये औरतों पे जुल्म है। दुनिया चांद पे पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? कहाँ? सब लोग मिल के बोलो, मौलाना दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम लोग अभी तक हिजाब कर रहे हो। मैंने कहा बे सुन, जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। वाह 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 वाह, है जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं। जो लोग चांद पे जा रहे हैं खुद पर्दा करके जा रहे हैं और पूरी टीम पर्दे में है। नासा की पूरी टीम पर्दे में है। मैं हजरत के सामने एक चीज और कहूंगा, ये एक पर्दा 300 करोड़ का है। एक पर्दा 300 करोड़ का है। तो जो एहतमाम तुम 300 करोड़ खर्च करके कर रहे हो, वो एहतमाम तो हमारे घर में बहने झाड़ू। वाह 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 वाह, नारे तकबीर,
अल्लामा रूहुल अमीन साहब किबला, हुजूर सैयद अमीन उल कादरी साहब किबला, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो एहतराम तो हमारी औरतें झाड़ू लगा लगा कर रही, तो तेरा चांद पे जाना एक तरफ बेटा, मेरी बहन का आलू काटना एक तरफ। आज लोग एक साहब कहने लगे, मौलाना इब्राहिम नाम था, का पर्दा जरूरी का, सोसाइटी पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा है, का फिर पर्दा क्यों करवाते हो मौलाना? ये मौलवियों ने निकाला। अरे बाप रे, बोला 15 साल हम अलीगढ़ में पढ़े हैं। मैंने कहा बेटा तू पढ़ा नहीं, पढ़ा 15 साल पढ़ा था। अलीगढ़ में प्रोग्राम था तो अलहमद अपार्टमेंट के आगे उसकी ताली चाबी की दुकान है। लोगों ने कहा चलो यार चलते, 2-3 दिन रहना था अलीगढ़ में। तो जब मैं शाम को 7:30 बजे उसकी दुकान पे गया ना, तो देखा वो दुकान पे शटर लगा रहा है, दुकान बंद कर रहा है। मैं पीछे था, आगे बढ़ा, उसके कान में बोला, क्यों बे दुकान बंद कर रहे हो, मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं? वाह मौलाना दुकान छोड़ दूं तो सुबह सुई नहीं मिलेगी। मैंने कहा सुई की बड़ी फिक्र है, कब्र में तोड़ाई ठुकाई की फिक्र नहीं। कि समझिए नहीं। आज लोग कहते हैं कि औरतों पर जुल्म कर रहे हैं, क्यों? वो पर्दे में, उसका लिबास अलग क्यों है? मैंने कहा लिबास का मकसद है मनसब को याद दिलाना। वाह, आपने देखा नहीं, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, कॉमन पुलिस का लिबास अलग है। और आगे आ जाए, सतारा वालों का अलग, इंडिगो का अलग, स्पाइस जेट का अलग है। और आगे बढ़े तो जल सेना वालों का अलग, थल सेना वालों का अलग, वायु सेना वालों का अलग, टीटी का अलग, मजिस्ट्रेट का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग। तो ये तो लिबास है, ये डिग्निटी है, ये पहचान है। अलग अलग जिम्मेदारियों को मतलब हमें बता रहा है ये लिबास। तो औरतों का भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं है, वो लिबास है। अजाब नहीं है, ये लिबास है। क्योंकि हमारी तहजीब कहती है जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। वाह, चाहे काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात हो या मज़ारत औलिया, वाह, मुहज्जब हो, लिबास पहना दो। ऐ सिल्ली गोड़ी वालों, तुमने कभी देखा है किसी नाविल को जो जुज़दान में लिपटा हुआ हो? वाह, इब्ने सफी की नाविल, विलियम शेक्सपियर की नाविल, प्रेमचंद्रा की नाविल, नदिया का पार, एक था टाइगर, खिलता गुलाब, टैक्सी ड्राइवर। देखा है किसी नाविल को जो जुज़दान में लिपटा हुआ? नहीं, नाविल होते इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर पड़े रहे। और कुरान इसीलिए है कि अज़मतों से सीने से लगे रहे। दुनिया औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा नबी किताबे हयात। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नबी किताबे हयात बना रहा है। आज हमारी औरतों को लोग बहकाते हैं वाह, कि इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। हुजूर सैयद साहब ने फरमाया ये उल्टा है। इस्लाम में हर चीज औरत के लिए आसान, मर्द के लिए मुश्किल। 1.5 महीने से हम बाहर चल रहे हैं, गोली पे गोली खा के तकरीर कर रहे हैं। हमारे घर में तो पकौड़े छान के खा रहे हैं। परेशान कौन है? मगर परेशानी नहीं है, इंशाअल्लाह ये हम लोग जो है दीन की खिदमत में लगे है ना। वो पकौड़े खा रही, आज भी पकौड़े खा रहे थे। और हम देखिए अभी कल आए भगते भगते, फिर सुबह भगते हुए जाएंगे, अल्लाह, फिर वहाँ। ये अल्लाह का करम है कि काम करवा ले रहा। इस्लाम में हर चीज, हुजूर सैयद साहब जवाब देते हैं कि नहीं, इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि औरत के लिए आसान है, मर्द के लिए मुश्किल। औरतों को सिर्फ 4 काम करना है। कितने काम? हुजूर सैयद साहब फरमा रहे हैं 4 काम। सैयदुल खुतबा क्या है? फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत, शौहर की इताअत। चौथी बोली कड़वी है, इल्ला मर रहिम रब्बी, है ना। तो बस औरतें इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। और जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, इस्लाम औरतों को डराता है, अरे किसी आप लोग घर जाते हैं तो क्या आप लोग के घर में औरतें जो है वो कुर्सी से छिप जाती है क्या? कभी हुआ है ऐसा? वो कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, बट मैं ये कहती है कौन? द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। ये एनी बेसेंट है,
یہ آپ کی خالہ ہے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریسرچ کیا، کہتی ہیں کہ میں عیسائیت، کرسچینٹی، جوڈائزم، جینزم، بدھزم، سیکولر، پارسی، ماڈرن، شنٹو، کیلاٹی، ٹیوٹانی، تمام مذاہب کو پڑھ کے آئی ہوں۔ جتنا اسلام نے عورتوں کو نوازا کہیں تصور بھی نہیں، کہیں تصور بھی نہیں ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام does not respect of women, but I say after coming my prophet women got right, but یہ کہتی ہے کہ جو کوئی حضرت محمد کی سیرت کو پڑھے گا وہ ان کا مرید ہو جائے گا۔ عظیم رب کا عظیم رسول، سنو کیا کہتی ہے۔ It is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia. جو کوئی محمد عربی کی سیرت کو پڑھے گا وہ ان کا مرید ہو جائے گا۔ عظیم رب کا عظیم رسول وہ کہتی ہے before the birth of Prophet Muhammad in Arab people used to bury their female children as soon as they were born. The Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. وہ کہتی ہے حضور تشریف نہیں لائے تھے، عرب میں لوگ بیٹیوں کو زندہ مار رہے تھے، کہیں دفنائی جا رہی تھی، کہیں پانی میں اور کہیں شوہر کے بعد مرنے کے بعد ڈائنگ سمجھی جا رہی تھی۔ حضور تشریف لائے، بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور دنیا کو پیغام دیا، اے دنیا والوں میں نے ہمیشہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہے۔ دنیا کا ہر باپ اپنی اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے۔ پیغمبر کے قول نے دنیا کی فضا میں ایسی گونج پیدا کی کہ دنیا میں تمام قوموں اور مذاہب نے فرمان رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ آج ٹی وی پر سانیہ بولتی ہے، سونیا بولتی ہے، شبانہ بولتی ہے، ممتا بولتی ہے، کیا بیٹی کے جنم پہ خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ حیرت ہے تم آج کہہ رہی ہو پیغمبر نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، روزانہ 12 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب تک بیٹیاں باپ کے گھر رہتی رحمت کا دریا وہاں بہتا ہے، اور جب شوہر کے گھر جاتی وہ دریا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، دین اسلام، عظمت اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ۔ تو کہتا ہوں عورتوں کو چھوڑو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بچیوں کو دیکھو اسلام کی آج بچیوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک فائل چل رہی ہے، لیکن آئیے دیکھیں آپ، آئیے دیکھیے آپ، یہ مدینے کی سرزمین ہے، صحابہ کا جھرمٹ ہے، پیغمبر کائنات درمیان میں تشریف فرما ہے، میرے مصطفیٰ کی گود میں ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ نبی محترم نے ارشاد فرمایا، او میرے ماننے والوں سنو، میرے گود میں جو چھوٹی سی بچی ہے نا، ایک یتیم غریب بچی ہے، میں چاہتا ہوں میرے ماننے والوں میں سے کوئی اس بچی کو لے لے، اس کی پرورش کرے۔ صدیق اعظم نے چاہا ہم لے لیں، فاروق اعظم نے چاہا ہم لے لیں، عثمان غنی نے چاہا ہم لے لیں، شیر خدا نے چاہا ہم لے لیں، جناب طلحہ نے چاہا ہم لے لیں، زبیر نے چاہا ہم لے لیں، حضرت بلال نے چاہا ہم لے لیں، عبد الرحمن بن عوف نے چاہا ہم لے لیں، زید بن ثابت نے چاہا ہم لے لیں، ابو ہریرہ نے چاہا ہم لے لیں۔ سب کے ہاتھ پیغمبر علیہ السلام کی طرف اٹھتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ بچی ہمیں دے دی جائے، ہمیں دے دی جائے، ہمیں دے دی جائے۔ میرے حضور محفل میں دیکھتے ہیں اور ایک صحابی سے فرماتے ہیں سنیے اس بچی کو آپ لے لیجئے۔ انہوں نے خوشی خوشی لیا، آنکھوں سے لگایا، ان کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہنے لگتے ہیں، بہتا ہوا آنسوؤں کا دھارا نبی محترم نے دیکھا۔ میرے حضور نے فرمایا اے یہ بہتے ہوئے آنسو کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ لرزتے ہوئے چہرے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا تم میڈیا کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے؟ قربان جاؤ سلی گوڑی والوں، صحابی رسول بچل کر عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، کیا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کیا اس لیے رو رہا ہو کہ جب تک ہم ایمان نہ لائے تھے، جب تک مسلمان نہ ہوئے تھے، آپ تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے تھے یا رسول اللہ، انہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندہ 6 بچیوں کو دفن کیا تھا یا رسول اللہ، یہ آپ کی آمد کا صدقہ ہے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہا تھا، زمین میں گاڑ رہا تھا، پیدا ہوتے ہی گلا دبا رہا تھا، آج غیر کی بیٹی کو پیار کر رہا ہے، آج غیر کی بیٹی کو گلے سے لگا رہا ہے، آج غیر کی بیٹی کو چوم رہا ہے۔ اے مصطفیٰ آپ نے ذہنوں کو بدل دیا ہے، فطرت کو بدل دیا ہے، سماج کو بدل دیا ہے، سوسائٹی کو بدل دیا ہے، حیوان کو انسان بنا دیا ہے۔ مصطفیٰ نہیں آئے تھے تو کائنات عالم
वाह वाह 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं। बोलो ना हक्के आत्माएं आजाद हुई है। इनकी इनायत है, करम है, मोहब्बत है कि हुजूर तशरीफ ले आए, वरना एक झलक देखने के लिए लोग परेशान रहते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनके सामने खड़ा हूँ, मेरे बैठने की औकात नहीं है। सही पूछिए तो मैं बताऊं, बस 1 मिनट लूं और अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूं। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the lid over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा हज़रत, we want to walk with you, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he begin to walk। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पाँव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से चलो या पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, बात याद रखना, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने न पाए। उन लोगों ने कहा, it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk, he started walk। अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पाँव उठाए, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे और उनके मानने वाले पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने बहकाया। एक क्रिस्टन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोच रहा था, जरा पाँव तो देख ले हैं कहाँ पे। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, बाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों, हुजूर सैयदुल खुतबा अल्लामा नज़ीर साहब और हमारे जितने बड़े जगीद उलमा हैं वो, और जितने भी हैं तमाम अराकीन कमेज जितने भी उलमा हैं, सब आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि दोस्तों, आप चलने में आज़ाद हो, चाहे तिजारत के लाइन पे चलो, मुलाजमत के लाइन पे चलो, स्कूल के लाइन पे चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, यूनिवर्सिटीज़ के लाइन से चलो, चलने में आज़ाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए इतना याद रखना कि तुम्हारी निगाह, तुम्हारी निगाह, तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसमें रसूल से हटने ना पाए, सीरत रसूल से हटने ना पाए, सुन्नत रसूल से हटने ना पाए, गौसे आजम से हटने ना पाए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन से हटने ना पाए, निजामुद्दीन से हटने ना पाए, फरीदुद्दीन से हटने ना पाए, अलाउद्दीन बदिउद्दीन से हटने ना पाए, आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद से हटने ना पाए। तो उलमाए हमें सुन्नत